Hello students, now we start chapter first, motion along a plane curve. The students are already familiar with the motion of a particle along a straight line with constant as well as with variable acceleration. In present chapter we shall discuss with the motion of a particle in a plane along a curve. To determine the position of a particle on a straight line at any time t, only single measurement is required. When we consider the motion of a particle in a plane along a certain curve, the position of particle at a given time t will be determined by its coordinate xy. Refer to two coordinate perpendicular axes ox oy in the plane. अब आता है velocity along a plane curve. The velocity of a particle moving along a curve is the rate of change of its displacement with respect to time. You already know it. Velocity along a plane curve. Let us consider a particle is moving along this curve. Let us consider a particle is moving along a curve CPQ, along curve this. Let this is the initial axis OX. Let at time t, particle is at point P, and at time t plus del t, particle is at point Q, and r is the position vector of point P, and r plus del r is the position vector of point Q. Now we have to find the velocity. Velocity is a rate of change of displacement with respect to time. कितने टाइम में, ये टाइम t पर था, दिस इज एट टाइम t प्लस डेल t. तो टाइम में चेंज कितना हुआ, डेल t टाइम में चेंज हुआ. और डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज हुआ कि पॉइंट O से P, पहले पॉइंट P पर था, पॉइंट Q पर चला गया पार्टिकल एट इन टाइम डेल t. देन दिस इज द PQ, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. तो हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल हम देखते हैं ओ पी क्यू ट्रायंगल में आप देखते हो, ट्रायंगल लॉ लगाया हमने. तो पी क्यू इज द पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ पी इक्वल टू डेल आर. ओ पी ओ क्यू हमारे पास है तो पी क्यू आ जाएगा. मीन्स दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट आपका डेल आर और टाइम है डेल टी. हम चेक कर रहे हैं वेलोसिटी एट पॉइंट पी. एट पॉइंट पी हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या बनेगी हमारे पास है, वेलोसिटी एट टाइम एट पॉइंट पी इज del r by del t and limit del t tends to 0, and this will becomes dr by dt. This is our velocity. Okay, you can easily see. I hope this will be clear. So dr by dt is the वेलोसिटी dr बाई dt. अगर हम एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में देखें, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो पोजीशन वेक्टर जो r है, जो पॉइंट p के पोजीशन वेक्टर है r, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम एक्स वाई मान लेते हैं. तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे. हमें पता है v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी है, तो यहाँ से हम डेरिवेटिव करेंगे डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी j. Then this is the our velocity in xy form. तो आपको पता है मॉडुलस निकालना आता है, तो d2x by dx by dt होल स्केयर प्लस dy by dt होल स्केयर टू द स्क्वायर रूट. दिस इज़ द वेलोसिटी. मीन्स मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास वेलोसिटी का, तो देन दिस इज़ कॉल्ड स्पीड. वेलोसिटी के पास स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, ओनली मैग्नीट्यूड है तो इसको हम स्पीड कह सकते हैं. Thus, you will learn v is equal to dr by dt, and in xy form v is equal to dx by dt I plus dy by dt j, and this is the magnitude. Next आता है acceleration along a plane curve. Acceleration आप जानते हैं, acceleration of a particle along a curve is the rate of change of its velocity vector. Rate of change of velocity vector means
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हम मान लेते हैं सेम जैसे अभी पीछे हमने आर्टिकल किया है। तो दिस इज इनिशियल लाइन ओ एक्स, लेट पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग दिस कर्व, एट टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी एंड एट टाइम टी प्लस डेल टी पार्टिकल इज एट पॉइंट क्यू। तो मान लेते हैं v is the velocity at point P and v plus del v is the velocity of particle at point Q। तो चेंज इन वेलोसिटी आप देख रहे हैं कितना बना, डेल v, कितने टाइम में, डेल t टाइम में वेलोसिटी में डेल v चेंज आ गया, एंड लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 हम लगा देंगे, तो दिस विल बिकम एक्सेलरेशन एट पॉइंट P। This is our acceleration at point P and this is equal to dv by dt, dv by dt। तो आप देख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन f इज डेल वी बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डी वी बाई डी टी। वी आप जानते हैं क्या है, डी आर बाई डी टी है, तो दिस बिकम्स डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इन एक्स वाई फॉर्म देखें हम, एक्स वाई फॉर्म में हमारे पास v है डी आर बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे, तो f बन जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप। ओके, इसका मैग्नीट्यूड हम देखें तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो अभी हमने किया है v इज इक्वल टू है चीज़ वही, उसको हम करेंगे। ये कैसे आया है, जैसे हमें अभी पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे, यानी हमें पता है कि डी एक्स बाई डी टी इज़ द वेलोसिटी अलोंग, ये आई कैप है, मीन्स मतलब क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डी वाई बाई डी टी इज़ द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो यही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे अब इसमें कि डी एक्स बाई डी टी इज़ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी टी इज़ रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेट कर लेते हैं। तो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है मान लेते हैं, तो लेट पार्टिकल इज एट पॉइंट P एट टाइम t, पार्टिकल इज एट पॉइंट Q एट टाइम t प्लस डेल t। तो हम देख रहे हैं चेंज क्या है, पार्टिकल P से चल के पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है। अब इसको क्या करते हैं कि P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x कोमा y है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए x प्लस डेल एक्स कोमा y प्लस डेल y, ये कंपोनेंट है। तो यहाँ x कोमा y होने का मतलब कि ये डिस्टेंस x है, x कोमा x प्लस डेल एक्स होने का मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x प्लस डेल एक्स। तो आपका ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, डेल x, यानी कि x एक्सिस में चेंज कितना हुआ आपका, डेल x। तो डेल x बाय डेल t, इन टाइम डेल t हुआ है, तो दिस इज़ द लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, डेल x बाई डेल टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली आप y एक्सिस में देखोगे तो दिस इज़ y एंड दिस इज़ y प्लस डेल y, तो ये हमारे पास चेंज है, एंड दिस इज़ डेल y, तो ये क्या है, डी वाई बाई डी टी हमारा ये बन जाता है। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ द रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डी वाई बाई डी टी इज़ रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसको हम डी एक्स बाई डी टी को एक्स डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी टी को वाई डॉट से। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं थीटा इज एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ मोशन मीन्स हमारा जो पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा था, डायरेक्शन क्या होती है, हमारे पास कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट P पर, कोई वेलोसिटी निकाली है हमने, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो इसकी ये बात कर रहा है, मान लेते हैं दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो हम देखेंगे इसको, v वेलोसिटी हमने मानी थी कि एट पॉइंट P वेलोसिटी इज़ v। तो रिजॉल्व पार्ट क्या बनेगा कि हमारे पास ये था पॉइंट P है, हमारे पास ये पॉइंट P के ऊपर ये टेंजेंट बनाया, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। दिस इज़ द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v।
तो v को हमने रिजॉल्व किया अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस रिजॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, तो दिस इज v cos थीटा। अलोंग y एक्सिस रिजॉल्व करोगे v को तो दिस इज v sin थीटा। तो v cos थीटा हमारे पास अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी हम जानते हैं dx/dt, अलोंग y एक्सिस रिजॉल्व किया हमने v को तो v sin थीटा एंड वेलोसिटी इज dy/dt। दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू dy/dx, ये इक्वल होता है टेंजेंट साई के लिए, साई के, तो थीटा इक्वल टू साई आ जाता है हमारे पास, विच इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p टू द कर्व अलोंग विच p मूव्स, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पाथ। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। u जो हमें पता है कि एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अलोंग x एक्सिस वेलोसिटी हमें पता है dx/dt है, अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी इज dy/dt। इनको हमने u और v से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्सेलरेशन निकालना है हमें अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो एक्सेलरेशन का हमें पता है कि एक बार dy/dt और लगा देंगे, क्योंकि क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारे पास dx/dt है, डिवाइड में dt और कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा d2x/dt स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं x डबल डॉट, ऐसे ही y डबल डॉट। तो आप देख रहे हैं x डॉट y डॉट, ये तो हमारे कंपोनेंट्स हो गए वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हो गए x डबल डॉट y डबल डॉट। तो दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग अ प्लेन कर्व। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, मान लिया कि पार्टिकल है जो इस कर्व ए पी क्यू से मूव कर रहा है, अलोंग दिस कर्व मूव कर रहा है, तो हमारे पास एट टाइम टी पार्टिकल इज एट पॉइंट पी, एट टाइम टी प्लस डेल टी पार्टिकल इज एट पॉइंट क्यू, एंड दिस ओ पी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड ओ क्यू लाइन मेक्स एंगल थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये पी क्यू जो ये वाला आर्क है, ये एंगल कितना बचा, डेल थीटा। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। तो चेंज कितना हुआ, एट टाइम टी पार्टिकल इज एट पी, एट टाइम टी प्लस डेल टी पार्टिकल इज एट पॉइंट क्यू। तो एंगल में चेंज कितना हुआ, डेल टी टाइम में, डेल थीटा चेंज हुआ कितने टाइम में, डेल टी टाइम में। तो एंड वी अप्लाई लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, तो दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट पी, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट पी, डी थीटा बाय डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो यानी कि जो ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी, तो चेंज इन velocity upon change in time, d omega by dt is the angular acceleration। ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं d थीटा बाई डी टी, तो ये दिस बिकम्स d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकेंड रिटन एज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगल की यूनिट होती है हमारे पास रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे डिवाइड में टी स्क्वायर टाइम। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन आप अभी जानते हैं, ऊपर पढ़ा है, डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ये कांस्टेंट गिवन है, इसको हमने एफ लेट कर लिया। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या बनेगा, डी ओमेगा बाई डी टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किया, तो दिस बिकम्स ओमेगा इक्वल टू एफ, हमारे पास पता है कांस्टेंट है, तो एफ को एज इट इज़ कांस्टेंट को टाइम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस कांस्टेंट c1, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं। इनिशियली तो टाइम 0 लेके चलते हैं हमेशा हम, और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा नोट लेट कर लेते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नोट। तो अब इसमें पुट करते हैं, इसमें क्या बनेगा, टाइम t इक्वल्स टू 0 माना है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, तो c1 की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या आ जाती है, ओमेगा नोट आ जाती है। तो इसमें यहाँ इक्वेशन 1 में पुट की, हमें इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं डी थीटा बाई डी टी होते हैं, ये हमने लगाई। अब फिर आप देख रहे हो डी थीटा बाई डी टी है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, थीटा 0 है, तो यहाँ से c2 की वैल्यू निकाली, तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है।
अब हमें क्या करना है, सेकंड और फोर्थ जो इक्वेशंस आई हैं उनसे हमें क्या करना है, टी को एलिमिनेट करते हुए 5 नंबर इक्वेशन बनाई तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाते हैं। जो हम लीनियर, ये हम एंगुलर वेलोसिटी के केस में पढ़ रहे हैं तभी हम ओमेगा ले रहे हैं। लीनियर वेलोसिटी के केस में हमने 3 इक्वेशंस की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2fs। तो उन्हीं के पैरेलल हैं ये तीनों इक्वेशंस। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, तो वही उन्हीं के पैरेलल हैं ये तीनों इक्वेशंस। नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ओमेगा से और लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम v से। तो ये रिलेशन है ओमेगा इक्वल्स टू v साइन फाई बाय आर, v साइन फाई बाय आर। एंगल फाई कौन सा है आपको ये ध्यान रखना है। एंगल फाई जो है हमारी इनिशियल लाइन है OX, मान लिया पार्टिकल अलोंग दिस कर्व मूव कर रहा है तो एट पॉइंट P है, तो ये हमारा रेडियस वेक्टर कि जो पॉइंट O ओरिजिन से बनाता है वो रेडियस वेक्टर होता है, इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O इज रेडियस वेक्टर R। तो अब हमें पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, अलोंग द टेंजेंट, हमें ये पता है। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट एट पॉइंट P। अब जो ये टेंजेंट की डायरेक्शन जो ये रेडियस वेक्टर से एंगल बनाती है ये एंगल फाई होता है, ठीक है, ये एंगल हमारा फाई होता है। तो आप फिगर में भी देख सकते हैं रिलेशन हमें निकालना है बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी होती है। अब डी थीटा बाई डी टी को इसको डी एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब डी थीटा बाई डी एस लेके चले, डी थीटा बाई डी एस को आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन जाता है साइन फाई। आप इस फिगर से आप चेक कर सकते हैं, आर डी थीटा बाई डी एस बन जाएगा। तो आर डी थीटा बाई डी एस की जगह हमने यहाँ ऊपर ये पुट कर दिया, इसमें डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू हो गई 1 बाई आर साइन फाई, डी थीटा बाई डी एस बन जाता है 1 बाई आर साइन फाई। वेलोसिटी वी हमें पता है डी एस बाई डी टी होती है, डी एस बाई डी टी, दिस इज़ द वेलोसिटी। ये हमने ये एस आर्क फॉर्म में लिखी है, एक वो पीछे रेडियस वेक्टर की फॉर्म में लिखी थी हमने डी आर बाई डी टी, तो हम ये आर्क फॉर्म में लिखते हैं तो डी एस बाई डी टी, ये वेलोसिटी वी हमें पहले भी पढ़ते हैं ये। तो ओमेगा की वैल्यू देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 में डी थीटा बाई डी एस की वैल्यू और डी एस बाई डी टी दो चीज़ें हैं। डी थीटा बाई डी एस आपने ये निकाला है, दिस इज़ 1 बाई आर साइन फाई, एंड डी एस बाई डी टी यू नो दिस इज़ इक्वल टू वी, तो ये क्या बन जाता है v साइन फाई बाई आर। तो v साइन फाई बाई आर इक्वल टू ओमेगा, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। v साइन फाई, v वेलोसिटी है, इसको ये आप फाई एंगल देख रहे हैं, v वेलोसिटी को रिजॉल्व किया, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू OP, क्योंकि साइन कंपोनेंट तभी बनता है ना, कोई भी हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर मान लिया ये डायरेक्शन ऑफ v है, दिस एंगल इज थीटा, मान लेते दिस एंगल इज थीटा, तो v को अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करते हैं तो v कोस थीटा, अलोंग वाई एक्सिस करते हैं तो दिस इज v साइन थीटा। तो यही केस है, v साइन फाई है, तो मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, मीन्स रिजॉल्व पार्ट ऑफ v परपेंडिकुलर टू OP। फाई एंगल किसके साथ बना रहा है, ये OP लाइन है, इसके साथ बना रहा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी वो बनेगी रिजॉल्व पार्ट ऑफ v परपेंडिकुलर टू OP। R क्या है हमारे पास, ये OP है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट आता है इन अ पर्टिकुलर केस इफ बोथ पाथ, इफ द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज सर्कल विद O एज सेंटर about which angular velocity is measured, then OP is perpendicular to PT, यानी along सर्कल ये मूव कर रही है, तो आप जानते हैं पॉइंट O से पॉइंट P पर हमने रेडियस वेक्टर बनाया ये R, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंट होती है, और सर्कल के केस में आप जानते हैं कि रेडियस वेक्टर और जो ये टेंजेंट होता है ये परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 बन गया, तो पाई बाई 2 की वैल्यू पुट की तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर,
तो यानी कि v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये रिलेशन आ गई इन केस ऑफ सर्कल। वैसे इन जनरल क्या है हमारे पास, v इक्वल टू ओमेगा इक्वल्स टू v साइन फाई बाय आर। फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर 1 आता है, वेरी इजी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t आर गिवन बाय x एंड y गिवन है, प्रूव दैट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। तो एक्सेलरेशन निकालना है, x और y गिवन है। एक्सेलरेशन आप जानते हैं d2x बाई डी टी स्क्वेयर, d2y बाई डी टी स्क्वेयर। एक्स वाई गिवन है तो इनका डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास अंडर रूट d2x बाई डी टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी टी होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप देख रही आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है डायरेक्शन ऑफ मोशन एट टाइम t। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे आती है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। ओके, तो टेन थीटा इज dy बाई डी एक्स, तो आप ये सॉल्व करके ये निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन टी एंड थीटा इक्वल्स टू टी आ जाता है। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट एट टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos t, y इक्वल्स टू a sin t, फाइंड इट्स पाथ, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्स वाई गिवन है, पाथ तो आप देख सकते हैं कि अगर स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन आके कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाता है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर बच जाएगा। एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पाथ तो आप क्या देख रहे हैं कि सर्कल है हमारा। हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आप जानते हैं डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी निकाला और इसका मैग्नीट्यूड निकाला हमने, तो दिस इज़ द वेलोसिटी। और एंगल कैसे निकालते हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज़ द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए d2x बाई डी टी स्क्वायर, d2y बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, और फिर इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो निकालेंगे वो हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ d2x बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी टी होल स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वैल्यू a आ जाती है। थर्ड एग्जाम्पल है, वेरी इजी, थोड़ा सा डिफरेंट है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ y. Particle is moving with a constant velocity parallel to axis of y and velocity proportional to y parallel to the axis of x. Prove that it will describe a parabola. एक बार फिर से रीड करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। वाई एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी आप जानते हैं डी वाई बाई डी टी होती है। मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट गिवन है ये। नेक्स्ट है वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्स, डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई, प्रोपोर्शनल टू वाई। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, तो यानी कि डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लैम्डा 2 ले लिया इक्वल टू लैम्डा 2 वाई। फर्स्ट है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा 1। तो दोनों को हमने सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन नंबर 1 है उसको इंटीग्रेट किया, हमारे पास y इक्वल्स टू लैम्डा 1 टी प्लस सी 1। तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0 y 0, तो c1 की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन नंबर 3 आप देख रहे हैं, तो y इक्वल्स टू लैम्डा 1 टी। तो y को हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो आप देख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 टी। तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 को हमने लैम्डा नाम दे दिया। अब इसको इंटीग्रेट किया, x की वैल्यू आ जाती है। अब दो इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर x इक्वल टू 1/2 लैम्डा टी स्क्वायर प्लस c2। अब इनिशियल कंडीशन पुट की, एट t इक्वल्स टू 0, x 0 है, तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ गई 0। तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। इक्वेशन 3 एंड 4 दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, x y की वैल्यू है। अब इसमें t को एलिमिनेट किया हमने, तो हमारा फाइनल ये आ जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स। दिस इज आवर पाथ ऑफ द पार्टिकल। यू कैन इजीली सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। ओके,
and this is the exercise you will do yourself. Okay, thank you students.